50% महाराष्ट्र की लाइट चली गई है। हम लोग का लास्ट पेपर है आज। Hello everyone, how's it going? Hope you all are safe and having a great day. So in this video I just wanted to document all the events that happened in the timeline of graduation 2020 final year student. So if you all didn't know this before, I am a student, or I was a student of 2020 graduation final year. So I just wanted to record all the things that happened during this period, the pandemic period, because it was very unusual and we were not prepared for everything that came to us. So yeah, let's get started. See, I believe that we are living in a historical period. Like, this period will be studied in the future history classes, if not in the near future, but in a far future, obviously. So I just wanted to document all the events in a proper way from my point of view, how I felt. So it all began when our Prime Minister declared or announced the Janta Curfew on 22nd March 2020. So before that we were going to college. I mean, we heard in the news that what the situation of coronavirus is in India and around the world, but we were not aware because it was our final year. So we were still going to college to get the extra information that whatever the revision or the syllabus completion was going on. So we were going to college till then. Then when the announcement occurred, we stopped going to college, and out of 7 subjects, I think 1 subject was remaining to be completed, the syllabus to be completed, and other subjects, I think the revision was going on. So, and all of a sudden the Janta Curfew happened, and from the next day the proper lockdown was declared in in entire India. So after the lockdown was announced, all the students were in their homes waiting for further announcement or whatever decision the government and MU or all the parties involved in the process would take, because there were hardly 15 to 20 days remaining for our final exams. So we were very anxious at that time about what is going to happen, and there was a lot of uncertainty during that time. Then we waited for like 1 or 2 months, March, then April, May and June. There were no proper announcement or notice about anything about the exams or even the college, basic college, or the lecture completion or online lectures. There were no such notice for 2 to 2.5 months. Then finally in June this happened. So after this decision, सारे ही फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वी वर वेरी हैप्पी. इसलिए नहीं कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे एग्ज़ाम के लिए और चलो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इस बात से नहीं, बल्कि इस बात से कि ऐसा सिचुएशन है जहाँ पूरी कंट्री लॉकडाउन में है, तो हमें खुद से जाकर एग्ज़ाम ना देना पड़े. और उस टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं था, सिर्फ ऐसा था कि केसेस जो है वो कोरोना वायरस के बढ़ते ही जा रहे और अगर आपको सेफ रहना है तो आप घर में ही रहो. तो हमें इस बात का डर था कि अगर हम बाहर जाएंगे और गॉड फॉरबिड कभी किसी को कुछ वायरस हुआ, पकड़ लिया अगर कोरोना ने, तो क्या होगा. एंड अगेन सेंटर में जाकर एग्ज़ाम देना था, तो वो पब्लिक प्लेस ही होगी बेसिकली, मतलब वहाँ पर बहुत से लोग होंगे, तो उस बात का टेंशन था ज़्यादा. फिर उसके बाद एक न्यू डिसीजन आया जो हमारे स्टेट के गवर्नर ने लिया, वो था ये. इसके बाद बहुत से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट किया, पोस्ट डाले कि ये गलत है, मतलब हम वी आर नॉट रेडी टू गिव बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टू फेस द चैलेंजेस ऑफ दिस न्यू द वायरस एंड द सिचुएशन. हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है और हमें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना हमें प्रिपरेशन का टाइम मिला कि हम किस तरह से, आई मीन मास्क लगा लेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ कर लेंगे, लेकिन फिर भी क्या गारंटी है कि हमें वो वायरस ट्रांसमिट नहीं होगा अगर हम पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो. सो इस बात से हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और लोग, स्टूडेंट्स ने बहुत सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले कि प्लीज़ हमें और सेकेंडली एक कन्फ्यूजन भी था, लाइक CM वॉज सेइंग समथिंग एंड द गवर्नर वॉज सेइंग सम अदर थिंग. तो ये बात का कन्फ्यूजन था कि एक ही स्टेट के गवर्नेंस में हमें 2 डिसीजन क्यों मिल रहे हैं और वो भी इतने कॉन्ट्रास्टिंग. सो गवर्नर ने हमें बताया कि किस तरह से हम डिग्री ऐसे ही नहीं दे सकते और उसका जो
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, नॉट जस्ट द सीएम और नॉट जस्ट द गवर्नर, बहुत से लोग होते हैं, यूजीसी है, फिर एमयू है, बहुत सी ऐसे फैक्टर्स को देखा जाता है और फिर सारे मिलकर एक डिसीजन लेते हैं. सो वी वर स्टिल वेटिंग फॉर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. फिर उस अनाउंसमेंट के बाद फिर से हमें 2 महीने तक कोई नोटिस नहीं मिली. वो अनाउंसमेंट हुई थी जून में, फिर जुलाई अगस्त तक हमें कुछ भी प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिल रही थी कि क्या होना है क्या नहीं होना है. देन फाइनली इन सितंबर, मिड सितंबर हमें पता चला कि गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला, एमयू ने भी नोटिस दिया कि एग्ज़ाम्स तो होंगे और ऑनलाइन होंगे और 1 to 17 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करके हो जाएगा. सो एट दैट टाइम वी वर वेरी रिलीव कि चलो एटलीस्ट ऑनलाइन हो रहा है, फिज़िकली जाकर सेंटर में नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फिर से हमें उसका बहुत डर था. पूरी कंट्री लॉकडाउन में है और हम कैसे जाएंगे, कैसे कम्यूट करेंगे. उस टाइम तक लोकल ट्रेन्स भी बंद हो गई थी. सो वी वर वेरी वरीड अबाउट दैट. तो एक वो अच्छा गुड न्यूज़ था कि हमें ऑनलाइन देना होगा और आने जाने का टेंशन नहीं है. बट उस टाइम पे हम इतना पैनिक क्यों हो गए थे, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स नीट के लिए अपियर कर रहे थे. तो नीट वालों को पता चला था कि उनका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा सेंटर में जाके. तो हमें लगा था हमारा भी ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसा नहीं हुआ. तो वी वर वेरी रिलीफ. मतलब वी शुड थैंक द डिसीजन मेकिंग पार्टीज फॉर दैट डिसीजन के थैंक गॉड ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ. तो जैसे ही अनाउंस हुआ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स भी स्टार्ट हो गए, रिवीजन के एंड सिलेबस कंप्लीशन के और डाउट सॉल्विंग. फिर ऐसे भी लेक्चर्स हुए कि टेक्निकल, हमने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं दिया था और मेरी फील्ड में हमें एमसीक्यूज़, हमें कहा गया कि एमसीक्यूज़ आएंगे, एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. तो हमने कभी भी ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आंसर नहीं किए थे. हमें ज़्यादातर आंसर्स जो थे वो 15 मार्क्स के होते थे, 3-3 पेज 4-4 पेज हम लिखते थे. तो हमें ज़रा भी आइडिया नहीं था कि 1 लाइनर आंसर विथ 1 वर्ड हम कैसे देंगे. सो उसके लिए भी हमारा स्पेशल लेक्चर रखा गया. उसमें हमारी टीचर्स ने, फैकल्टीज़ ने हमें गाइड किया कि किस तरह हमें पैनिक नहीं करना है और मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस रख के अच्छे से पेपर देना है और टेक्निकलिटीज़ क्या है, लॉग इन लॉग आउट कैसे करना है एंड थिंग्स लाइक दैट. वो सब बहुत ही स्मूथली हो गया. फिर नेक्स्ट हमें फिर भी टाइम टेबल नहीं मिला था. मतलब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि अक्टूबर के 1st-2nd वीक में होगा, मगर हमें ऑफिशियली टाइम टेबल नहीं आया था. हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. फिर उसके बाद हमें टाइम टेबल आया 19 या 20 सितंबर को. फिर 5 अक्टूबर से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने थे. तो हमने प्रिपरेशन तो हो चुकी थी हमारी और पहले का भी हमें पढ़ा हुआ था. तो वैसे करके हम ऑलमोस्ट अच्छे से प्रिपेयर हो गए थे और वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द एग्जामिनेशंस टू हैपन. तो वो टेक्निकल लेक्चर्स में हमें ये भी बताया गया कि अगर आपका पावर कट होता है या इंटरनेट का कुछ इश्यूज़ होता है तो कैसे आपको पैनिक नहीं करना है और किस ऑप्शंस में जाके क्या करना है, रीलोड करना है, रिफ़्रेश करना है, तो उससे आपका पेपर फिर से आ जाएगा. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट ऑल दोज प्रोसेस वर हैपन वेरी स्मूथली. फिर 5 अक्टूबर आ गया, हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए. वी स्टार्टेड गिविंग आवर एग्जामिनेशंस और मेन प्रॉब्लम तब आया जब हमारा लास्ट एग्ज़ाम था. 12 अक्टूबर को हमारा जो लास्ट एग्ज़ाम था उसमें जो क्लाइमैक्स हुआ है, मतलब ये पूरी स्टोरी, पूरे टाइमलाइन का क्लाइमैक्स, मतलब सबसे हाईएस्ट टेंशन वाला जो एरिया था वो हमारा लास्ट एग्ज़ाम ही था. उस दिन आप सबको पता होगा कि 12 अक्टूबर को ग्रिड फेलियर हो गया था ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ महाराष्ट्र में और मुंबई एंड सबर्बन एरियाज़ में मेजरली 50% महाराष्ट्र की लाइट चली गई है. हम लोग का लास्ट पेपर है आज. मेरे सारे फ्रेंड्स लॉगिन करके बैठे हैं और एग्ज़ाम में अभी 10 मिनट 20 मिनट बाकी है और ग्रुप में सब, किसी के यहाँ भी लाइट नहीं है. थाने, मुंबई एंड नवी मुंबई में नहीं थी. फिर कांटेक्ट किया जब अथॉरिटीज़ को तो पता चला 50% महाराष्ट्र की लाइट गई हुई है. तो एक्चुअली यही वो पार्ट था जिसने मुझे मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग एल्स वॉज हैपनिंग लाइक द न्यू नॉर्मल वे. लेकिन जो 12 अक्टूबर हमारे लास्ट एग्ज़ाम के दिन जो ग्रिड फेलियर हुआ, दैट वाज समथिंग एल्स. मतलब इतने पैनिक हो गए थे हम लोग जितना पूरे ड्यूरेशन में नहीं हुए हम लोग.
तो बेसिकली क्या हुआ उस दिन, मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग उठे, एग्ज़ाम के लिए सब प्रिपेयर्ड थे और हमें कहा गया था कि 1 घंटे पहले लॉगिन करना है और 45 मिनट्स पहले लॉगिन करना है। तो हम लॉगिन करने गए और इतने में मुझे जस्ट रियलाइज़ हुआ कि लाइट तो है ही नहीं। सी आई लिव इन थाने डिस्ट्रिक्ट, सो वहाँ पे लाइट का ना होना, पावर फेलियर होना, इट इज़ कॉमन। तो हमारे यहाँ पे इन्वर्टर था, मतलब हमारे पास बैकअप होता है। लेकिन जो लोग मुंबई सिटी में रहते हैं प्रॉपर, उनके पास बैकअप नहीं होता क्योंकि वहाँ पर मोस्टली लाइट जाती ही नहीं है। तो वो लोग ज़्यादा पैनिक होने लगे। तो मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल किया कि तेरे पास पावर कट हुआ है क्या तेरा? तो उसने कहा हाँ हुआ है, और उसने अपने दूसरे फ्रेंड से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हमारे एरिया में हुआ है, में भी हुआ है। तो यूजुअली इतना मेजर पावर कट ज़्यादातर होता नहीं है मुंबई में। तो और मेरे लिए वो ओकेश था, मगर जब सब कहने लगे कि नहीं हमारे इधर भी पावर कट है, हमारे इधर भी है, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो है, देखा जाए तो जो मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स हैं वो सब घाटकोपर, नवी मुंबई एंड सब मुंबई सबर्बन एरियाज़, थाने डिस्ट्रिक्ट, ये सारे एरियाज़ में से है। तो सब कहने लगे कि लाइट गई है, फेलियर हुआ है, नहीं आ रहा है, और सब पैनिक होने लगे जिनके पास बैकअप का कोई ज़रिया नहीं था। तो एट दैट टाइम सब ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा, फैकल्टीज़ को पूछा कि मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम क्या करें। और लिटरली पेपर देने में कुछ 10-15 मिनट ही बाकी थे और ये सब डिस्कशंस चल रहा था। तो हम सब काफ़ी उस टाइम पे पैनिक हो गए थे कि क्या करना है क्या नहीं। फिर से फैकल्टीज़ ने बहुत हेल्प किया। उन्होंने कहा कि नहीं आप डरो मत, हम लोग देख लेंगे, मतलब बेसिकली ये टेक्निकल इशू है तो हम लोग कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे और हम एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करते हैं। अगर आपके सबको यही सेम प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, हम लेटर इन द डे लेंगे। तो वी वर लाइक ओके। तो हम सब ने लॉग आउट किया और सोचा कि चलो लाइट आ जाएगी। फिर इतनी देर में ग्रुप्स में सब और न्यूज़ में वगैरह आने लगा, फ़ोन पर, सोशल मीडिया पे, कि ग्रिड फेलियर हुआ है, एवरीवन इज़ फेसिंग दैट, और लाइट आएगी, करंट आएगा 4 बजे तक शाम में। तो मोस्टली सबके एरियाज़ में 4 बजे का अनाउंसमेंट हुआ था। मेरे एरिया में ऐसा कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो आई वॉज स्टिल इन अ वेरी अनसर्टनिटी कि पता नहीं क्या होगा। तो ऑलमोस्ट 4 बजे तक सबके यहाँ पर करंट आ गया था, तो मेरे यहाँ नहीं आया था। तो हमें ग्रुप में एक लिस्ट बनाने बोली, और कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि पहले ही आ गया 2-2:30 बजे के करीब और फिर से चले गया। तो फिर हमने एक लिस्ट बनाई कि किसके घर पर लाइट है, किसके यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे चलते चलते फिर डिसाइड हुआ कि नहीं आज जाने ही देते हैं, हम नेक्स्ट डे एग्ज़ाम्स लेंगे ताकि तब तक तो सबके यहाँ पे लाइट रिस्टोर हो जाएगी। तो फिर 13 अक्टूबर को सेम टाइमिंग 11 o'clock पे हमने पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया। लास्ट एग्ज़ाम, मतलब लास्ट एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा कुछ न्यू इंटरेस्टिंग हो गया था लाइफ में। तो हमने सब ने पेपर दिया और 1 घंटे में सबमिट हो गया एंड एवरीथिंग वॉज बैक टू द न्यू नॉर्मल। So that's all for this video. I think I have covered most of the events that happened during that टाइमलाइन, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगे और जो हम सबको ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग या थोड़े अजीब लगे, वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। और एक और बात है जो हर फाइनल ईयर स्टूडेंट के मन में रही ही होगी कि गवर्नमेंट ने और एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ और जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व थे डिसीजन फाइनल एग्ज़ाम के लेने में, उनमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं था। मतलब अगर एक अथॉरिटी बोल रही है कि एग्ज़ाम होगा, दूसरी अथॉरिटी बोल रही है नहीं होगा कुछ दिन बाद, तो मतलब स्टूडेंट्स क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। एक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बाकी सब तो काफ़ी स्मूथली कंडक्ट हो गया। तो सिर्फ ये है कि अगर कुछ डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। और इनफैक्ट बीच बीच में 2-2 महीने तक स्टूडेंट्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता था, इसलिए फिर स्टूडेंट्स जो है वो सोशल मीडिया पर जाते थे प्रोटेस्ट करने के लिए और बोलने के लिए कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, हमें गाइड नहीं किया जा रहा है एंड ऑल। तो एटलीस्ट मतलब अगर आपने कोई डिसीजन लिया नहीं भी है कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, बट एटलीस्ट एक ऐसा रिमाइंडर कि वी नो दैट यू ऑल आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। एंड बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो गई बिकॉज जॉब्स जाने लगे लोगों के, तो फाइनेंशियल, फिर फैमिली इश्यूज़, कुछ ना कुछ ऐसा था प्रॉब्लम्स।
तो सिर्फ अगर अथॉरिटीज़ जो थे वो एक ऐसा ही अनाउंसमेंट कर रहे थे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के वी नो दैट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड प्लीज़ डो नॉट पैनिक, एंड हम जो भी डिसीजन होगा वो जल्द से जल्द आपको बताएंगे, सो दैट स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हमें लोग भूल नहीं गए हैं, और मतलब लोगों को पता है कि हम भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. I want to take this opportunity to thank all the government officials and the education department of our state and country, जिन्होंने डिसाइड किया कि फिज़िकल एग्जामिनेशंस नहीं होंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे. दैट वाज अ रियली रिलीविंग मूवमेंट फॉर फाइनल ईयर ग्रेड स्टूडेंट्स. एंड ऑल्सो हमारे फैकल्टीज़ ने भी हमें बहुत हेल्प किया जब कंफर्म हो गया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और लेक्चर्स भी अच्छे से हुए, हमें बहुत अच्छे से गाइड किया. एंड ऑल माय फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, हमने बहुत ही मतलब अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट किया. मतलब बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास बुक्स नहीं थी, मेरे पास भी एक दो सब्जेक्ट्स की बुक्स नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, एरिया में नहीं मिल रही थी. तो हम सब ने बराबर से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किया. अगर किसी को कुछ तकलीफ़ हो रही थी पढ़ने में, कुछ नहीं समझ आता, तो एक दूसरे को हेल्प किया एंड ऑल. एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छा ऐसे ऑरा एक था कि सब लोग दे वर विलिंग टू हेल्प द अदर पर्सन. कुछ भी होगा तो हम लोग साथ में फेस करके सम हाउ मैनेज कर लेंगे. तो इट वॉज नॉट अ वेरी गुड बट you know a very interesting and thrilling experience. We experienced something new in this lockdown. So I think that's pretty much it for this video. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी रिलेटेबल लगा, लाइक कि हाँ हमने भी ऐसा कुछ फेस किया, नॉट ओनली द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग और अपीयर्ड फॉर दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ हमने भी ऐसा कुछ फेस किया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना. डू शेयर योर फीडबैक्स इन कमेंट एंड सब्सक्राइब if you haven't yet, and yeah, see you all soon in my next video. Till then, bye.